Yes. Diarrhea. Diarrhea we learn from many sources. Everywhere the approach is different. Totally academic approach, totally practice oriented approach. We have to treat the diarrhea as per our science in a child with that family, that mother, that family environment, and that particular child. So the skill depends on the person you are caring for, child. Child in a family, poor illiterate, child in a middle class family, child in a rich family, highly educated rich, low education and rich. Management differs. Child in OPD, child in indoor, child in ICU with diarrhea. Management differs. So we have to look at diarrhea from all the angles, in all settings, because we don't know from which setting the child is coming to us, and we don't know which setting child will be in OPD or indoor or ICU. Everywhere we come across diarrhea. Basically, diarrhea is due to inflammation of intestinal GI tract mucous membrane. Infection may be viral or non-viral, viral, bacterial, non-infectious. It is an inflammation. Gastritis and enteritis, gastroenteritis. Commonest is viral. Large watery viral. Blood and mucus with tenesmus bacteria. Fever may be in both viral and bacterial. But in viral there is diarrhea and child doesn't look sick unless dehydrated. In bacterial, child looks sick even if child is not dehydrated. So sick look, tenesmus, blood mucus go on the side of bacteria. Not sick look, large watery, vomiting and diarrhea go more in favor of viral. Normally, food is digested and absorbed through intestinal wall of intestine, and nutrients go in circulation. That is the normal flow of GI tract. In gastroenteritis, there is mucosal edema due to inflammation, and secretions from blood circulation come into the GI tract and they are passed as stools. We have to understand this reversal of flow from lumen to circulation and सर्कुलेशन टू ल्यूमेन. सर्दी में नाक को पानी आता है, 2-3 इंच का नाक हैंडकरचिप गीला हो जाता है. इंटेस्टाइन तो 22 फीट है. उसको सर्दी जैसा इन्फ्लेमेशन हो गया पूरे जीआई ट्रैक्ट को, तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर बाहर जाता है, इसलिए डिहाइड्रेशन जल्दी होता है. लेकिन बेसिक पैथोलॉजी सेम है सर्दी की और डायरिया की. इट्स द एक्सटेंट ऑफ lumen wall, few inches and 22 feet, that makes the difference. Another thing that makes difference is total blood volume. We know it is 75 cc per kg. For a 10 kilo child,
it will be 70, 75, 750 ml. In an adult, it is 5 liter. एडल्ट को डायरिया हो गया तो एक बकेट पानी से एक लोटा पानी बाहर गया, कुछ फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा। लेकिन 5 किलो बच्चे को डायरिया हो गया तो उसका टोटल ब्लड वॉल्यूम 350 ml है, और एक टाइम में 100 ml डायरिया, 200 ml डायरिया हो सकता है। लार्ज वाटरी का मतलब क्या होता है? 100-200 ml एट ए टाइम। बिकॉज ऑफ low total body water content, child become dehydrated very easily. Within few large water areas, child can become dehydrated rapidly. That makes the difference between child and adult, infant and child, newborn and infant. Blood volume, total blood volume, and total water content of the body. So, all the children who die with diarrhea die because of dehydration and not due to diarrhea. So we have to target dehydration rather than diarrhea. So our approach should be controlling the loose stool, number of stool, frequency is not important. Controlling the total body water content is important. और ये मैसेज मदर को देना है और फैमिली को देना है. That is our job. We are here for safety of child. Drugs for diarrhea do more harm than good. और ये पहले दिन में ही पेरेंट को बता देना है, फैमिली को बता देना है, और ये उनको समझाना है. अपने को अपना बच्चा अच्छा होना चाहिए तो डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करना है, डिहाइड्रेशन क्योर करना है. सॉल्ट शुगर सॉल्यूशन टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन एंड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन टू क्योर डिहाइड्रेशन. एग्जामिनेशन करते टाइम डिहाइड्रेशन है नहीं है. A child cannot have dehydration with normal heart rate, appropriate for the age. पहला देखना है तो नॉर्मल हार्ट रेट है कि नहीं, और एबनॉर्मल है तो कितना एबनॉर्मल है और क्यों एबनॉर्मल है. टैकीकार्डिया है तो फीवर के वजह से कितना है, क्राइम के वजह से कितना है, और डिहाइड्रेशन की वजह से कितना है, ये हमें जजमेंट लेना पड़ता है. डिहाइड्रेशन के वजह से डायरिया डिस्प्रोपोर्शनेट रहता है, डिस्प्रोपोर्शनेट टू फीवर, डिस्प्रोपोर्शनेट टू क्राइम. 1 degree of fever rise, heart rate rises by 10. थोड़ा उसका जजमेंट लेना है. फीवर नहीं है तो टैकीकार्डिया होने का कुछ कारण नहीं. हिस्ट्री ऑफ फीवर पे अभी का हार्ट रेट नहीं डिपेंडेंट करता है, अभी के फीवर पे अभी का हार्ट रेट डिपेंड करता है. फीवर रिकॉर्ड किया, फीवर टेम्परेचर नहीं है, हाई टेम्परेचर नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर है और टैकीकार्डिया है, मोर लाइकली टू बी डिहाइड्रेशन. बच्चा सोया है, फीवर नहीं है, टैकीकार्डिया है. क्राइम कॉजेज टैकीकार्डिया, तो क्राइम भी नहीं है तो भी टैकीकार्डिया है. फिर साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन मालूम रहता है अपने को. लेकिन एक सवाल तो जरूर पूछना है हर माँ को जब भी डायरिया के लिए आएगी, लास्ट यूरिन कभी पास किया, वो एडिक्वेट था क्या. ये इसलिए पूछना है, हमें समझ में आ गया कि डिहाइड्रेशन नहीं है बच्चे को, तभी भी माँ को अवेयर करना है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. मैं एडिक्वेसी ऑफ ब्रेस्ट मिल्क जब भी जजमेंट लेता हूं, हर माँ को ये क्वेश्चन 3 बार पूछता हूं. 24 घंटे में कितने बार यूरिन पास करता है? 6 से ज्यादा बार करता है? एडिक्वेट करता है?
ये 3 सवाल पूछना है और फिर से पूछना है, तो उसको इम्पोर्टेंस उसका समझ में आता है। नॉर्मली मोर देन 6 टाइम्स यूरिन पर डे होना चाहिए, 4-6 घंटे में यूरिन होना चाहिए। लास्ट यूरिन कभी पास किया? अभी आने के पहले पास किया, 1 घंटा पहले पास किया, सवेरे से नहीं पास किया, शाम से नहीं पास किया, कुछ भी उत्तर आ जाता है। फिर सवेरे से बोले तो कभी तक, अभी वी आर एग्जामिनिंग एट 4 PM और सवेरे से नहीं किया, वी आर एग्जामिनिंग एट 10 PM AM एंड सवेरे से नहीं किया। तो सिर्फ सवेरे से नहीं किया बोलने से नहीं चलता, वो कितना आवर्स हो गया वो देखना है। इफ इट इज मोर देन 6 आवर्स वी नो 6 टाइम होना चाहिए, तो 4-4 घंटे के बाद होना चाहिए। बिल्कुल उतना रूल नहीं है, थोड़ा इधर उधर 1-2 घंटा हो गया तो चलता है। 6 घंटा तो मैक्सिमम है, 6 घंटे से ज़्यादा हो गया, यूरिन नहीं पास किया, पॉइंट टू बी नोटेड, वाइल एग्जामिनेशन पॉइंट टू बी नोटेड कि नहीं 6 घंटे से ज़्यादा नहीं हुआ। तो पैसेज ऑफ यूरिन इम्पोर्टेंस है डिहाइड्रेशन के लिए, ये माँ को इन्फॉर्म करना है। अपने को तो समझता है, डिहाइड्रेशन ग्रीडिंग भी समझता है अपने को। ज़्यादा करके वर्नाकुलर में बात करना है, माँ की भाषा में बात करना है। गुजराती है तो गुजराती, मराठी है तो मराठी, तो हिंदी है तो हिंदी। माँ की भाषा में बात करने से डायरिया मैनेजमेंट एट होम अच्छा होता है और माँ को समझ में आता है इम्पोर्टेंस क्या है। जुलाबाचं बाळ म्हणजे गळका माठ, पानी का मट्टी का भरा हुआ रहता है और वो फुटा हुआ, उसमें से पानी निकल रहा है। जेवढा फास्ट त्यातनं पाणी गळेल तेवढं वरनं होता। रेट शुड बी मॅच्ड फॉर अ चाइल्ड, 1 लूज मोशन 1 कप, 4 लूज मोशन 4 कप, 10 large watery diarrhea 10 cup. For an adult, 1 glass, 1 loose motion 1 glass. Glass is 200 ml, cup is 100 ml. Standard. So, amount of rehydration, volume to be given डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ लॉस। सो ये उसका तरीका है। कितना पानी पिलाना, हर 10 मिनट के बाद 5 चम्मच, स्मॉल फ्रिक्वेंट इज द बेस्ट एडवाइस। ORS पिलाना, हर 10 मिनट के बाद 5-5 चम्मच पिलाते रहना, जब तक डायरिया ज़्यादा है तब तक। डरना नहीं, लाइट बंद कर दे, जैसे अभी डॉक्टर के पास गए और जुलाब बंद करके लाए, लाइट का झटका बंद किया, ऐसा नहीं होने वाला। आज 10 हुए, कल 5 हो गए, पर 2 हो गए, फिर परसों अच्छा हो जाएगा, धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। मैजिक अपेक्षा नहीं करना। सर्दी है 2-3 दिन में हो जाती है, 2 दिन तकलीफ होती है, वैसे ये भी है। सिर्फ सर्दी में कोई सीरियस नहीं होता, डायरिया में डिहाइड्रेशन होकर सीरियस हो सकता है। दवाई नहीं दिया तो बच्चा अच्छा होगा, पानी नहीं दिया तो सलाइन लगाना पड़ेगा। लोग सलाइन को डरते हैं, मालूम है, एडमिट किया तो एक तो तकलीफ, फैमिली डिस्टर्ब, खर्चा। प्रिवेंशन ऑफ डिहाइड्रेशन इज एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी फॉर द फियर ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। तो हॉस्पिटलाइजेशन का डर दिखाना है। अगर पानी नहीं पिलाया, वॉमिटिंग हो गए, तो उसका क्या करना है, फिर से पानी पिलाना है। पानी पिया करके वॉमिटिंग हो गया ऐसा नहीं बोलना, उसको वॉमिटिंग हो रहा है करके पानी पिलाना है, सो दैट देयर शुड नॉट बी लेस अमाउंट ऑफ वाटर इन हिज बॉडी। कंटिन्यू फीडिंग। माँ का दूध है बंद करो, NBM रॉन्ग एडवाइस।
there is no reason why we should stop mother's milk. Continue normal feeding. Food cures diarrhea. दाल का पानी, चावल का पानी, हल्का खाना, सब झूठ है, सब झूठ है. हरदम का खाना, दाल चावल रोटी सब्जी खाना चाहिए. वो नहीं दिया तो बच्चा अच्छा नहीं होगा. डायरिया इज अ न्यूट्रिशनल डिसीज. फूड क्योर्स इट. ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. हम डायरिया को इन्फेक्शन के हिसाब से देखते हैं, एंटीबायोटिक के हिसाब से देखते हैं, एंटी डायरियल के हिसाब से देखते हैं, लैक्टोबैसिलाई दे सकते हैं, जिंक डेफिशिएंसी के हिसाब से देख सकते हैं. लेकिन हमें देखना यह है कि फूड क्योर्स इट. न्यूट्रिशनल डिसीज के हिसाब से देखना है, इन्फेक्शियस डिसीज के हिसाब से नहीं देखना है, क्योंकि उसको ड्रग इज नॉट इम्पॉर्टेंट. दे डू मोर हार्म देन गुड. डायरिया के बच्चे को राइप बनाना और घी मिक्स करके खिलाने से डायरिया जल्दी अच्छा होता है. राइप बनाना में पेक्टिन रहता है. कोई कोई कंट्रीज में डायरिया की ट्रीटमेंट आधा किलो बनाना, 1 किलो बनाना, 1.5 किलो बनाना इन अ डे ऐसी रहती है. सिर्फ बनाने पे लोग बच्चों को क्योर करते हैं. नहीं, उसको दिन भर में आधा किलो का बनाना खिलाना, 1/4 किलो बनाना खिलाना, 2 किलो बनाना खिलाना. डोज जैसा, ड्रग जैसा बनाना का यूज करते हैं कोई कोई कंट्री में. और ये किताब से पढ़ रहा हूँ मैं, मेरा खुद का नॉलेज नहीं है. उसके लिए वैसी किताबें पढ़ना पड़ता है. ग्राउंड टू अर्थ लेवल की किताबें पढ़ना पड़ता है. हाई फाई किताबों में ये नहीं लिखा रहता. और कॉन्स्टिपेशन के लिए हरा पीला बनाना, अनराइप बनाना. पीला काला इज राइप बनाना, पेक्टिन ज़्यादा है. हरा पीला में, अनराइप बनाना में फाइबर कंटेंट ज़्यादा है, बल्क फॉर्म करता है और कॉन्स्टिपेशन के लिए ट्रीटमेंट देते हैं. सो कंटिन्यू फीडिंग इज, वॉट एवर नॉर्मल डाइट इज टू बी कंटिन्यूड. स्मॉल फ्रिक्वेंट फीडिंग इज इम्पॉर्टेंट. As far as possible, reduction of sugars, carbohydrates, because it is a nutritional disease. Indigestion जो होता है वो पहले कार्बोहाइड्रेट का होता है. डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंसेस कार्बोहाइड्रेट का आते हैं. लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकता है. मिल्क कार्बोहाइड्रेट एंड मिल्क प्रोटीन, काउज मिल्क, बफेलोज मिल्क, दोनों का अलग अलग असर है. दोनों सेम नहीं है. लैक्टोज इंटॉलरेंस इज कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस. हर डायरिया में म्यूकोजल वॉल इडिमा होता है. डीन्यूडेशन ऑफ ब्रेस्ट बॉर्डर हर डायरिया में होता है, लार्ज वाटरी वायरल डायरिया में. लैक्टेज ब्रेस्ट बॉर्डर ऑफ इंटेस्टिनल म्यूकस मेम्ब्रेन में रहता है. हर डायरिया में थोड़ा तो भी लैक्टोज इंटॉलरेंस होता ही है, बट दैट इज टेम्पररी. 4-5 days, 6 days, not more than 15 days. जैसा सर्दी अच्छी हो जाती है, गैस्ट्रोएंटेरिटिस वायरल अच्छा हो जाता है, हीलिंग हो जाता है, म्यूकोजल वॉल सेल्स फिर से नॉर्मल हो जाते हैं, ब्रेस्ट बॉर्डर आ जाता है. ब्रेस्ट बॉर्डर आने से लैक्टोज लेवल बढ़ते हैं. सो टेम्पररी लैक्टोज इंटॉलरेंस रहता है, और वो एब्सोल्यूट लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं रहता. पूरा दूध बंद करना है, माँ का भी और टॉप, ऐसा कुछ नहीं है. लेकिन ऊपर का दूध वैसे भी नहीं देने का है. वही ऊपर का दूध, गाय का, भैंस का, एनिमल मिल्क वैसे भी अच्छा नहीं है. कार्बोहाइड्रेट इंटॉलरेंस हो सकता है या तो प्रोटीन इंटॉलरेंस हो सकता है.
दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन राइस दाल रोटी सब्जी नॉर्मल खाना चलता है, वो चाहिए। फल सब्जी चलता है, वो चाहिए, वो लो लैक्टोज है। तो का डाइजेस्टिव कॉजेस ऑफ डायरिया नहीं ज़्यादा होते हैं। तो नॉर्मल फीडिंग कंटिन्यू करना है। कोई भी बीमारी में बच्चे की भूख कम हो जाती है और फूड न्यूट्रिशन की गरज ज़्यादा रहती है। स्मॉल फ्रीक्वेंट फीडिंग टिल डायरिया इज क्योर्ड। जुलाब अच्छा होने तक एक टाइम ज़्यादा खाना खिलाना। वन मोर फूड। मैं नॉर्मल हूँ तो एक एक रोटी 2 टाइम खाता हूँ। मैं बीमार हूँ, भूख कम हो गई तो आधी रोटी 4 टाइम खाना चाहिए, तो 2 रोटी का कोटा हो जाएगा दिन में। स्मॉल फ्रीक्वेंट फीडिंग इज द आंसर फॉर एनोरेक्सिया ड्यूरिंग इलनेस, एनोरेक्सिया ड्यूरिंग डायरिया एंड प्रिवेंशन ऑफ माल न्यूट्रिशन ड्यू टू इन्फेक्शन। Small frequent feeding is also a treatment for weight loss during illness. Small frequent feeding is a treatment for infection malnutrition cycle and underweight children, otherwise also. So small frequent feeding, ये important है. Prevention of diarrhea. Hygiene. Rotavirus is the only viral diarrhea that cannot be prevented by hygiene. Very important. It is so infectious. हाइजीन से फर्क नहीं पड़ता है उसको, इसलिए रोटा वायरल डायरिया का वैक्सीन आया है। बाकी कोई वायरल डायरिया का वैक्सीन नहीं है, रोटा वायरल का है। वो क्यों देना है? एक तो वो सीरियस बनाता है, डिहाइड्रेशन करता है, जान लेता है, और उसका वैक्सीन अवेलेबल है। देयर आर अबाउट 700-800 वायरसेस दैट कैन कॉज डायरिया। सिर्फ रोटा वायरस का वैक्सीन अवेलेबल है, तो वो देना है। मीजल्स वैक्सीन देना है डायरिया के पेशेंट को, इट प्रिवेंट्स डायरिया। विटामिन ए सप्लीमेंटेशन प्रिवेंट्स डायरिया, हाइजीन प्रिवेंट्स डायरिया, विटामिन ए प्रिवेंट्स डायरिया, मीजल्स प्रिवेंट डायरिया। हैंड वॉशिंग बिफोर एंड आफ्टर टचिंग फूड एंड stools or excreta. Animal excreta is also infectious. काऊ डंग को पायस मानने की कोई जरूरत नहीं। काऊ डंग ये डंग है, और गोबर को गोबर ही समझना है, गोबर को पायस नहीं समझना है, बिल्कुल गलत है। गोट्स रहते हैं, चिकन रहते हैं, कैट डॉग रहता है घर में, पेट एनिमल्स रहते हैं, पेट बर्ड्स रहते हैं, उनका एक्सरीटा भी इन्फेक्शियस रहता है। बहुत से रूरल घर में बच्चे और गोट के बच्चे साथ में बड़े होते हैं और उनकी दोस्ती रहती है, वो एक में के बगैर रह नहीं सकते। फॉर मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड, डिसेबल्ड चाइल्ड, पेट थेरेपी को थेरेपी माना जाता है। घर के सबको मालूम है ये लड़का मतिमंद है, मेंटल रिटार्डेड है, सब उसको मेंटल रिटार्डेड जैसा ट्रीट करते हैं। आजू बाजू के लोगों को मालूम है ये लड़का मेंटल रिटार्डेड है, वो उससे मेंटल रिटार्डेड जैसा बर्ताव करता है, लेकिन पेट को मालूम नहीं, डॉग को मालूम नहीं मेरा दोस्त मतिमंद है करके, वो उसको नॉर्मल ह्यूमन बीइंग करके ट्रीट करता है। कैट नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे
ट्रीट करती है, इसलिए उनकी दोस्ती बहुत अच्छी होती है. द प्रॉब्लम इज हाउ द सोसाइटी, फैमिली ट्रीट्स द चाइल्ड, हैंडल द चाइल्ड. और ये पेट थेरेपी का ये प्रिंसिपल है. ये पेट को मालूम नहीं कि ये आदमी डिसेबल्ड है. पेट नहीं मानता है उसको डिसेबल, इसलिए उनकी बहुत अच्छी दोस्ती बनती है. बराबरी के रहते, वो एंजॉय करते एक मेक का कंपनी. एडल्ट फैमिली मेंबर्स भी एंजॉय नहीं करते मतिमंद की कंपनी. मतिमंद है तो है ना, तो उसकी कंपनी, उसको एंजॉयमेंट दो, तुम एंजॉय करो. लोग ये नहीं करते. एंजॉइंग द कंपनी ऑफ डिसेबल्ड चाइल्ड नहीं करते हैं, करके सब सोशल और बाद में साइकोलॉजिकल और बाद में साइकेट्रिक प्रॉब्लम घुस जाते हैं बच्चे में और घर में भी. लेकिन कितना भी मतिमंद रहे, डिसेबल्ड रहे, नॉर्मल बिहेवियर रहेगा तो उसका साइकोलॉजी का भी नॉर्मल रहता है बच्चे का, और वो साइकेट्रिक नहीं बनता, और नहीं तो साइकेट्रिक बन जाता है. तो डायरिया में इम्पोर्टेंस है प्रिवेंशन ऑफ डायरिया में ये था. तो ऐसा डायरिया प्रिवेंशन के हिसाब से फिर से डायरिया नहीं होने के लिए तुमने क्या करना चाहिए, ये माँ से बात करना चाहिए. तो रुकते हैं आज यहाँ पे. क्यों नहीं रुक रहा रही?